Good morning, students. I am Murthy, your SST teacher, going to teach you lesson 2, Federalism, section civics. And in this lesson today, we will read about decentralization in India. Means today's topic is decentralization in India. Decentralization is a term, and I'm going to tell you what's the meaning of decentralization. It means when power is taken away from central and state governments and given to local governments, it is called decentralization. Bete, it means when power is taken away from central and state government and given to local government, that is referred as a decentralization. It is called decentralization. Clear? And today we will read about decentralization. I have told you what is decentralization and why we need it. Clear? Why we need it? For smooth functioning of government as well as to make the people empowered, local people empowered. जो स्थानिक लोग हैं उनको शक्तिशाली बनाने के लिए we need decentralization. Mean this is power when it is divided among various social groups, that is termed as decentralization. On the other hand, when power is taken from other political parties, social groups, and humans, local people, and given to one person or one government, that is known as centralization. Centralization is not a good theory, but decentralization is very beneficial for India. So, today we will read about decentralization. We noted above that federal governments have two or more types of governments. We have seen one, we have central government, then we have state governments. Means our country is divided into many states, 28 states, and each state has its own government. Means we have two or more types of government. Third tier is introduced in 1991, that is known as local government. Local, state, center government, state governments, and local governments. And this process is known as decentralization. Why? Because powers of centers are taken and given to state governments, and powers of state government are taken and given to local governments. That is termed as decentralization. We have so far discussed the two types of government in our country. We have already read about two types of government. But a vast country like India can't be run only through these two types. India is a very big country and it has various kinds of diversity. People are different from one another on the base of religion, language, color, caste, food, geographically, economically, socially, politically. And to accommodate such diversities, we need power sharing, and that is decentralization. इतने बड़े कंट्री के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट
sufficient to run the day-to-day administration. We need third tier also. Clear? States in India are as large as independent countries of Europe. आपने देखा ही है जो बेल्जियम है वो हरियाणा के साइज का है, श्रीलंका है वो भी हरियाणा के साइज का है। बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा से कम है, बेल्जियम में 1 करोड़ पॉपुलेशन है, हरियाणा में 2 करोड़ पॉपुलेशन है। श्रीलंका में भी 2 करोड़ पॉपुलेशन है, हरियाणा में 2 करोड़ पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र का साइज जर्मनी जितना बड़ा है, यूपी इतना बड़ा जितना रशिया बड़ा है। तो आप देख रहे हो कि हमारे देश में जो स्टेट्स हैं वो यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा बड़े हैं या उसके साइज के हैं। तो इतने बड़े कंट्री को अच्छे तरीके से हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, वी नीड मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज, तो हमने देखा है कि स्टेट्स इन इंडिया एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, मैंने पहले ही बता दिया। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन रशिया से ज्यादा है। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी, महाराष्ट्र इतना बड़ा जितना जर्मनी बड़ा है। Many of these states are internally very diverse, means on the basis of language, economy, society. There are different kinds of people who are living in these states. There is thus a need for power sharing within these states. So that's why to accommodate the diversity, we need a concept that is power sharing, or you can say it's a decentralization. It's your wish to ask any name, means it is the name of one thing, decentralization or power sharing. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. In power sharing के लिए we need one more tier. Two tiers already existed in our country. जब हमारा देश आजाद हुआ उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे देश में 2 टायर्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी। फॉर होल कंट्री वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट and for states we have state governments. What we need more tier of government, more ranks of government, that was introduced in 1991, आप मीन दिसंबर 1991 में इंट्रोड्यूस की गई। आप लगा लो 92 में हमने एक थर्ड टायर को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर? दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मीन हमें पावर की जरूरत थी डिवाइड करने की। Thus resulted a third tier of government called local government. ऐसे में हमारे पास लोकल गवर्नमेंट आ गई। क्लियर? तो 3 टायर्स हो गया, आपने याद रखना, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। So it is clear what is decentralization. When power is, it is mentioned here, when power is taken away from central and state governments and given to local governments, it is called decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at local level. Now the question is why decentralization is required? Why we sharing power? The reason is that there are large number of problems at local levels, large number of issues. जो स्थानिक लेवल पर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं उनकी नॉलेज लोकल पीपल्स को है और उन्हीं के पास बेटर सोल्यूशन भी है रादर देन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उन इश्यूज के बारे में ज्यादा नहीं जानती, नहीं उसका अच्छा सोल्यूशन कर सकते जितना अच्छा वहां के स्थानिक लोग कर सकते हैं। क्लियर? पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज, लोगों के पास बेटर नॉलेज है अपनी लोकेलिटी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं। They also have better ideas, उनके पास better ideas भी नहीं to solve the problem on where to spend money and how to manage things more efficiently. Means for efficient management, for efficient administration, local people are the better solution rather than central or state leaders.
beside at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. One more benefit of decentralization, एक तो वहां स्थानिक लोग अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनका सोल्यूशन भी उनके पास है। दूसरा फायदा क्या है, स्थानिक लोगों को भी शक्ति मिलेगी, वो भी पावरफुल महसूस करेंगे। जब किसी को हम शक्ति देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल बनकर वो ड्यूटीज डिस्चार्ज करता है, ड्यूटीज डिस्चार्ज होने लग जाती हैं तो राइट्स की बात खत्म होने लग जाती है, मीन इश्यूज सेटल्ड डाउन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, तो वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज होगी। दिस हेल्प्स टू इनकैलकुलेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ऐसे में ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर कौन सी हैबिट इनकैलकुलेट हो जाएगी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की। वो सेल्फ डिसिप्लिन में बनाएंगे अपने आप को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे काम करेंगे, इसकी वजह से स्मूथ फंक्शनिंग होगी देश की। लोकल गवर्नमेंट is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government। ऐसे में सेल्फ गवर्नेंस की हैबिट प्रोड्यूस हो जाएगी, अपने आप को गवर्न करने की जब हमारी आदत डेवलप्ड होगी तो हमारे बहुत से रिसोर्सेज बच जाएंगे, बहुत से बेनिफिट्स होंगे। क्लियर। और जो डेमोक्रेसी का आइडिया है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। डेमोक्रेसी क्या है, डिपेंड्स ऑन टू एलिमेंट्स, फ्रीडम एंड लिबर्टी, इक्वलिटी। तो फिर हम एक दूसरे के साथ इक्वलिटी से भी पेश आएंगे, रिस्पेक्ट के साथ भी, फ्रीडम को भी इंजॉय करेंगे। So the need for decentralization was recognized in our constitution। और इसके बिना ये गांधी जी का भी सपना था पंचायती राज का, उन्होंने देखा था, वो कहते थे राज जो स्टेट है एक जरूरी बुराई है, इसके बिना ये बुराई इसीलिए है क्योंकि ये अमीरों का साथ देता है, ये प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करता है। बुराई इसीलिए है क्योंकि ये नियंत्रण करता है, सोसाइटी पर कंट्रोल करता है, इसीलिए गांधी जी कहते थे राज एक जरूरी बुराई है। इसकी बजाय वो पंचायती राज को समर्थन देते थे, उनका सपना था कि हर गांव को वहां की पंचायत एडमिनिस्ट्रेट करे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, लोग पावरफुल होंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, वो अपनी स्थानिक समस्याओं का हल जल्दी से निकालेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। ऐसे में राज की शक्ति भी कम हो जाएगी, सभी शक्तियां एक व्यक्ति के या एक ग्रुप के हाथ में नहीं होंगी, सभी लोग ही शक्तिशाली बन जाएंगे इंडिया में। The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns। फिर हमने बहुत सी कोशिशें की कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, जो विलेज के टाउन्स के लोग हैं उनको पावर्स दी जाए। तो पंचायत इन villages and municipalities in urban areas were set up in all the states। तो फिर क्या किया हमने, पंचायत या फिर जो टाउन्स है वहां म्यूनिसिपैलिटीज को सेटअप कर दिया, शुरू कर दिया सभी स्टेट्स में। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, पर ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में रहेंगी, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी। क्लियर। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ये पहले भी थी, ये 1992 से पहले की बात कर रही हूं मैं, लेकिन उस समय ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थी, कोई डायरेक्टली इसके जो है इलेक्शंस नहीं होती थी रेगुलरली, कोई सीरियस नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट्स, कंट्रोल तो कर रखा था लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सीरियस रिगार्डिंग इट्स रेगुलर इलेक्शन। तो इलेक्शंस भी लोकल गवर्नमेंट्स की रेगुलर नहीं होती थी। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्स ऑफ देयर ओन, ना ही इनके पास अपने रिसोर्सेस थे, क्लियर, ना ही इनके पास अपनी पावर थी, ये वैसे एक खाना पूर्ति की हुई थी। देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स, तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था। तो फिर क्या किया, 1992 में एक मेजर स्टेप लिया, मींस थर्ड टायर को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया। क्लियर। पंचायती राज को 1992 में अच्छे तरीके से लागू किया। अ मेजर स्टेप
towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये प्रोविजन थी, क्लियर, थर्ड टायर को पावरफुल बनाने के लिए। अब कौन कौन से उसके अंदर एलिमेंट्स डाले, कौन कौन सी चीजें कंपलसरी कर दी, या 1992 में कौन से मेजर स्टेप्स लिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स। फर्स्ट तो ये कर दिया, now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies, कि हर 5 साल के बाद जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी इलेक्शन करवाने की जिम्मेवारी स्टेट की है, और ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, क्लियर, जरूरी है, क्लियर, ये कर दिया। पहले नहीं इलेक्शंस होती थी, अब होती हैं रेगुलरली हर 5 साल के बाद। हमारे गांव में हर 5 साल के बाद पंचायत चुनी जाती है, आपके बुढलाडा शहर में हर 5 साल के बाद म्यूनिसिपैलिटी जो है कमेटीज चुनी जाती हैं, बठिंडा में, पटियाला में, चंडीगढ़ में हर 5 साल के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनी जाती हैं, क्लियर, मीन इनकी टर्म कितनी है, 5 साल की है। और सीट्स आर रिजर्व्ड in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. These are the backward classes or those people who are economically downtrodden, जिनको जो इकोनॉमिकली हमसे पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, या सोशली एजुकेशनली इनको इक्वलिटी नहीं मिली हुई, सदियों से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसीलिए इनके लिए सीट्स क्या रखी गई हैं, रिजर्व्ड रखी गई है। रिजर्व्ड मीन सेव की गई है इनके लिए सीट्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। किन लोगों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इट क्लियर? अपार्ट फ्रॉम इट, थर्ड वन प्रोविजन, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर औरतों को शक्तिशाली बनाने के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व्ड हैं, क्लियर, मीन जैसे मेरे गांव में 30 मेंबर चुने जाने हैं पंचायत के, तो इसका 1/3 क्या हुआ, 3 के साथ डिवाइड कर दो, मीन उसमें से 10 औरतें पंच या सरपंच बनेगी, क्लियर, सरपंच हमारी लेडी है, पंच भी हमारे लेडीज हैं बोड़ावाल में। नेक्स्ट है एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे हमारा नेशनल इलेक्शन कमीशन है, रिस्पॉन्सिबल टू हेल्ड ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, राष्ट्रपति इलेक्शन हो, प्राइम या लोकसभा इलेक्शंस हो, वो जस्ट स्टेट लेवल की एमएलएस की इलेक्शन है, सभी का अरेंजमेंट जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो करता है। ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसको असिस्ट हेल्प करने के लिए, कम उसकी जो है स्टेट लेवल पर सपोर्ट करने के लिए। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि वो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को अरेंज करें हर 5 साल के बाद। नेक्स्ट है द स्टेट governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing vary from state to state. To do any work we need revenue. कोई भी काम करना है आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो रेवेन्यू कहाँ से आता है, स्टेट गवर्नमेंट्स उनके साथ शेयर करती हैं, इन स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देती हैं, पैसे देती हैं, क्लियर, जिसको रेवेन्यू कहते हैं। इस पैसे से वो अपने डे टू डे जो काम है, डोमेस्टिक चोर्स है, उसको कर लेते हैं। सो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज, इसीलिए इसको हम लोकल गवर्नमेंट है जो क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत, हर गांव में एक ग्राम पंचायत है। And this is council consisting of several ward members often called पंच, क्लियर। और ये क्या है, एक काउंसिल है,
काउंसिल मीन्स एक ग्रुप है यहाँ जो मीटिंग करती है, इसके सेपरेट वार्ड मेंबर होते हैं। जैसे आप कौन से वार्ड में रहते हो, आई थिंक 12 वार्ड में रहते हो, मैं 10 वार्ड में रहती हूँ, तो हर एक वार्ड का मेंबर होता है जिसको हम पंच कहते हैं, पंच। क्लियर? और इन सभी पंचों से पंचायत बन जाती है। एक पंचायत का हेड भी होता है, दैट इज नोन एज सरपंच, या तो उसको सरपंच कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट भी कहते हैं। कई बार इसको हरियाणा में इसको चौधरी कहा जाता है। क्लियर? मीन इट्स नेम आर डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, अलग अलग तरीके से लोग इसको नाम से बुलाते हैं। प्रेसिडेंट भी कहते हैं, सरपंच भी कहते हैं, हमारे गांव में हम सरपंच कहते हैं या फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, हरियाणा में मैंने बताया चौधरी कहते हैं। क्लियर? देयर डायरेक्ट, और इन सभी को, पंचों को और सरपंच को हम लोगों ने चुना है, हमारे गांव की पॉपुलेशन ने चुना है। दे आर डायरेक्टली इलेक्ट by all the adult population living in that ward or village. Adult population, those who are 18 years old or more than 18 years old, they are termed as adult, उनको हम adult कहते हैं। It is the decision making body for the entire village, और ये जो पंचायत है हमारे गांव की, ये क्या करती है, पूरे गांव के लिए डिसीजन लेती है। ये डिसीजन लेने वाली बॉडी है। क्लियर? जिसको हमारे गांव के लोगों ने चुना है वोट डाल के। फॉर 5 years द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब आप पूछोगे मैडम ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा, हर गांव में ग्राम सभा है अपने आप, इसको इलेक्ट किसी ने नहीं किया, ऑटोमेटिकली हर गांव में ग्राम सभा है। और इसका हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, जर्नल कास्ट, सभी इसके मेंबर होते हैं। और इनमें से जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट, वो वोट डाल के इसको चुन देते हैं, पंचायत को, और ये पंचायत की सुपरविजन भी करते हैं। क्लियर? मीन्स पावरफुल कौन है? ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा ने पंचायत को बनाया, और ग्राम सभा ही पंचायत को हटा भी सकती है। So all the voters in the village are its member, मैंने पहले ही बता दिया। It has to meet at least, ये साल में 2 बार बैठ के जो है अपनी मीटिंग करती है, कई बार 3 बार भी। It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। मीन ग्राम पंचायत की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में अपने विचार वटांदरा करने के लिए साल में 2 बार या 3 बार एकत्र होते हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। मीन गांव में, ये गांव है, हर गांव में पंचायत है, और आगे पंचायत के मेंबर पंचायत समिति या पंचायत मंडल चुन लेते हैं। क्लियर? क्या चुन लेते हैं? पंचायत मंडल। क्लियर? और आगे ये पंचायत मंडल वोट डाल के इसके सभी मेंबर जिला परिषद चुन लेते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। समझ गए? ये पंचायत है, पंचायत ने जो है ब्लॉक्स या मंडल चुने वोट डाल के, मीन पंचायत के मेंबरों ने, आगे इन्होंने जिला परिषद। समझ गए बेटे? A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर, मैंने दिखाया आपको 2-2 ग्राम पंचायत इकट्ठी हो गई, टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। इन्होंने एक पंचायत समिति बना ली, इन्होंने अपनी पंचायत समिति बना ली। क्लियर? और इन्होंने अपनी पंचायत समिति बना ली। आगे ये पंचायत समिति क्या बना लेगी? जिला परिषद। क्लियर? तो यूजली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ये देखो, पंचायत समिति,
और ब्लॉक और मंडल, तीन नाम है इसके। इसको चाहे पंचायत समिति बोलो, ब्लॉक और मंडल बोलो। The members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. पंचायत members चुनते हैं इसको। Clear? All the panchayat samitis or mandals in a district together consist the जिला परिषद, मैंने वो भी आपको दिखा दिया। जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट परिषद, मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, ज्यादातर इसके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। जैसे हमारे एरिया में एमएलए खुदराम जी हैं, क्लियर, वो ऑटोमेटिकली जिला परिषद के मेंबर हो जाएंगे। क्लियर, क्योंकि ये एमएलए हैं। अगर कोई एमपी होगा वो भी ऑटोमेटिकली जिला परिषद का मेंबर हो जाएगा। क्लियर, या फिर हम कहें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डीसी है, कमिश्नर है, वो भी जिला परिषद का मेंबर है। क्लियर, members of the Lok Sabha and the MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its member. जिला परिषद चेयरपर्सन is the political head of the जिला परिषद। क्लियर, जो जिला परिषद चेयरपर्सन है वो is the political head of the जिला परिषद, वो political head है। क्लियर, similarly local government bodies exist for urban एरियाज एज वेल। ऐसे जैसे पंचायत की मैंने आपको एग्जांपल बताई कि वो पंचायत समिति बनाती हैं, जिला परिषद, ऐसे ही ऑटोमेटिकली अर्बन एरियाज के लिए भी म्युनिसिपैलिटीज हैं। जो छोटे स्मॉल टाउन्स हैं उनके लिए तो म्युनिसिपल कमिटीज हैं और इसका हेड जो होता है चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन। क्लियर, और जो बड़े शहर हैं लाइक चंडीगढ़, बिग सिटीज हैं जो लाइक चंडीगढ़, पटियाला, फिरोजपुर, बठिंडा, उनके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। मींस इसके मेंबर मोर देन 50 होते हैं, मींस 60 मेंबर होते हैं मैक्सिमम। लिए ज्यादा मेंबर, क्योंकि बड़ा शहर है, बड़ी पॉपुलेशन है, उसके लिए ज्यादा काम करने पड़ते हैं। ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ती है। और जो इसका हेड होता है वो मेयर होता है, मेयर। क्लियर बेटे, म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स, बिग सिटीज आर कंसिस्टेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, मैंने बता ही दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है बिग सिटीज में। Both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people the representative, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। Municipal chairperson is the political head of the municipality. In a municipal corporation such officer is called mayor, उसको हम मेयर कहते हैं। क्लियर बेटे, सो this new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. ऐसे हमारे थर्ड टायर है जो ये एक न्यू सिस्टम है, एक लोकल गवर्नमेंट है, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है इन डेमोक्रेसी। क्लियर, देयर नाउ अबाउट 36 लाख हमारे कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, 36 लाख। इतनी तो यूरोप के देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है जितने हमारे चुने हुए जो हैं प्रतिनिधि लोकल गवर्नमेंट्स में काम कर रहे हैं, लैक्स। क्लियर बेटे, elected representative in the panchayats and municipalities and so on all over the country. Clear, this number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. ऐसे में हमारे देश में जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो डीप हो रहा है। It has also increased women's representation and voice in our democracy. Women also getting power in our country through local government. At the same time, there are many difficulties. No doubt, we are getting progress in democratic scenario, but we are facing problems also. While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabhas are not held regularly. चोनें तो होती हैं
लेकिन जो ग्राम सभा की ड्यूटी है कि साल में 2 बार 3 बार इकट्ठे होकर सुपरवाइज करें ग्राम पंचायत को, बजट देखें उसका, वो नहीं हो रहा। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी ज्यादा शक्तियां लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं दी। नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, ना ही उनको ग्रांट्स देती हैं, रेवेन्यू उनके साथ प्रॉपर्ली शेयर करती हैं। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अभी भी हम जो थ्योरी में है वो प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा पीछे हैं, हमें और आगे आना पड़ेगा। थैंक यू क्लास।